from everyone, yes. Nilesh is the first one to tell me that, yes, I am audible. Thank you, Abhilasha ji, Prachiti, Babita. Yeah, thank you. Great. So this is the kind of thing that I'm going to be keeping on asking in between. That am I audible? Is the screen visible? All these questions are something that we have been used to. And today, the topic that has been allotted to me is something which is very, very near to my heart, which is mentoring and counseling. Now, you all might feel that why are topics such as mentoring and counseling, which we all know what is all about, why should we have it in the refresher program? Why to talk about what is mentoring and what is counseling for almost 1.5 hours? And plus that too in the post lunch session when most of us are at our own places and trying to get a good nap. But let me assure you that I'll try my level best to not get you bored and to make this as interactive as possible. And for that, in between, I might ask some of you to switch on your cameras, or we might do something wherein it will be a group activity. I might ask 2 or 3 people to come together and do certain activities. Will that be okay? So far, so good. Are we good to go? My speed okay to all of you? All right. Great, great. Thank you. Thank you so much for that. Okay, so let me just share my screen. One question I wanted to ask to all of you is, are we comfortable with the language or should I change it a bit? मैम प्रेफरेबली हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड विल गो. मिक्स. ऑल राइट. तो आज हम मिक्स्ड लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश एज वेल एज मराठी. In between, I can speak a little bit of Bengali also. So anyways, just let me share my screen with you all so that we can begin this wonderful journey. All right. So another question, screen hopefully visible to you all. Yes, ma'am. Great. Fantastic. So let me just move on to saying that what we will be talking about. Okay. So we are going to be talking about mentoring and counseling. Basically, teachers का क्या role है when it comes to mentors and counselors. तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों को पूछना चाहूंगी, क्या आप सब लोग mentoring करते हैं? कोई अनम्यूट करके बता पाएगा मुझे? क्या हम mentors हैं, Yes, mentoring yes, करते हैं? Yes, Om Prakash yes, Kashyap ji says that yes. yes, Yes, ma'am. yes, We are all mentors. Exactly, yes. when we talk about mentoring, we all do it. Let me just go into the F5 mode, okay? So that this will be visible clearly to you all. Just a moment, okay? Yeah, clearly visible, right? Great, good. Let me know if the slide, I'm changing the slide. Is the next slide visible to you? Yes, Which ma'am. talks about learning outcomes. Yes, ma'am. Yeah, great, great, fantastic. Because what happens is sometimes due to some technical errors, I change the slide and it's not visible. All right, fine. So basically, ये आने वाले 1-1.5 घंटे में हम लोग mentoring और counseling इसके ऊपर बात करने वाले हैं. So at the end of this 1.5 hour, we should be able to understand the fine line between mentoring and counseling. Sometimes हम लोग ये words को बहुत synonymously use कर लेते हैं. And we should be able to implement the mentoring schemes in our colleges. Many of us already have, but can we do it in a much better way? What kind of changes can we bring in? Can we establish counseling centers in our colleges? And when I talk about counseling, I will clear certain conceptions when it comes to the regular counseling techniques which are done by counselors, and how can teachers as counselors be different. Okay, so I'll touch that topic as well. और सबसे important जो हम लोगों के लिए आज की डेट में है, ये mentoring और counseling हम NAC records में कैसे रख सकते हैं. ये क्राइटेरिया 2 में काम में आएगा, ये क्राइटेरिया 5 में भी काम में आएगा. तो इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए ताकि जब हमें वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंटरिंग के बारे में, तब हम लोग कैसे कैसे इसके डॉक्यूमेंट्स दिखा पाएंगे. ऑलराइट, सो फार सो गुड. इज माय स्पीड ओके?
Yes, ma'am. Yeah. Yes, Yes. Great. yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Great. So let us move ahead and talk about टीचिंग कोचिंग एंड मेंटरिंग. अब बहुत बार हम लोग साइमल्टेनियसली ये वर्ड्स यूज करते जाते हैं, बट टीचिंग जो हम लोग आज की डेट में रेगुलर प्रैक्टिस में यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा फोकस जो रहता है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हमको एक्सप्लेन करना है टू द स्टूडेंट्स. मे बी वी यूज अ इजियर लैंग्वेज, हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस लेते हैं. यहाँ पे बहुत साइंस के फैकल्टीज भी होंगे हमारे साथ आज. Anyone who belongs to the science faculty, can you just simply give me a hi? Hello. Yeah, there. Yes, ma'am. Yes. Yes, Babita ma'am is there. There's Swati Deshmukh ma'am also is Yes, ma'am. there. Great, fantastic. तो जब हम साइंस के फैकल्टीज होते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं. हम कॉमर्स के हैं तो हम थियोरेटिकल कोई थियरीज जब पढ़ानी है तो एग्जाम्पल्स देते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं. इंटर्नशिप्स के थ्रू भी बच्चे सीखते हैं. जब इंटर्नशिप में बच्चा जाता है तब मतलब वो रियल वर्ल्ड में जा रहा है, और वहां पे उसको एक कोच होता है जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं, वहां का उसका जो गाइड होगा इन दैट इंडस्ट्री और इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको रोजमर्रा की चीजें समझाने में, डे टू डे बिजनेस कैसे किया जाता है वो समझाने में उसे मदद करेगा. सो दैट्स अ कोच. When we talk about a mentor does not talk about concepts or key points. He will talk about, boss, तुझे क्या नहीं समझा है? What is your problem? Why are you not getting this? What can I do to make sure that you are getting this in the right way? So teaching, coaching, and mentoring are all three different things. And today our focus is going to be on mentoring. That is, focus on the individual and his or her path for fulfillment. Now, when I use the word fulfillment का मतलब ये है यहाँ पे कि हर एक बच्चा जो है उसके पास अपना खुद का एक कोई स्किल है. जरूरी नहीं कि बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो सकता है कि उसे जबरदस्ती स्ट्रीम में डाला गया हो, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स द केस. पेरेंट्स ने बोला मेरे फ्रेंड्स ने ये स्ट्रीम ली इसलिए मैंने भी स्ट्रीम ली. उसका इनबॉर्न एटीट्यूड नहीं होता है, बच्चे की शायद इच्छा भी नहीं होती है. और मूवी 3 इडियट से तो ये चीज बहुत मतलब सामने आ गई है, दैट हाउ द पेरेंटल प्रेशर forces an individual to join a particular program or a course which is not according to his area of interest, and eventually the person is not satisfied. अच्छे नंबर भी नहीं ला पाता है, ना खुद खुश रहता है, ना पेरेंट्स खुद खुश रहते हैं. In mentoring, we will try to understand what kind of skills my student possess and how I as an individual can help him to build on those skills. Okay, so there was this wonderful, और आज ये example मैं आपके सबके साथ share भी करना चाहती हूँ कि I think last 2-3 years back, Dr. Surendra Gole had come to our institute to talk about career choices, like, how to pick up a good career. And, the kind of good orator he was talking, very enthusiastically and energetically to the students about kite flying. Okay, and the students were answering him like, yeah, sir, patang aise udani chahiye, uski kanni aisi honi chahiye. And, the conversation was going on. And immediately he popped up a question, kite flying से कोई अपना career बना सकता है क्या? And there was a pause. There was a silence in the auditorium. And students started thinking, okay, and बन सकता है क्या? career बना सकते हैं क्या? And उसमें से एक बच्चा बोला कि नहीं सर, career तो नहीं बना पाएंगे. तो उन्होंने कहा मतलब आप चाहे भले बहुत skilled हो, आप कितनी भी पतंगे काटो, कितनी भी competitions जीतो, probably आप इससे अपना करियर नहीं बना पाओगे. What he was trying to explain to the students is कि आपके पास बहुत कोई एक अच्छा स्किल हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो स्किल के बेसिस पे आपका करियर बने. एज अ मेंटर हमारा काम ये रहेगा कि बच्चों के स्किल्स तो आइडेंटिफाई करने हैं ही है, बट एट द सेम टाइम हम स्किल्स के ऊपर क्या बच्चा करियर बना पाएगा? If not, what are the other options that we can suggest to him? So that's how we are going to
talk about mentoring for students. मेरी स्पीड ओके है? आगे की स्लाइड में मैं बढ़ सकती हूँ? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द फेवरेट एंड द फर्स्ट मेंटर दैट वी ऑल हैव, श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें न कि पूरी महाभारत पांडवों को जिताई, बट ही वॉज मच मोर देन दैट. फ्रॉम द टाइम बीइंग कि जब दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं श्री कृष्ण के पास ये मांगने की, हमें आपकी सहायता की जरूरत है. दुर्योधन उनके सिरहाने बैठते हैं, अर्जुन उनके पैरों की तरफ बैठते हैं. ये स्टोरी हम सबको पता है. The point I'm trying to make here is it's not necessary always that a mentor chooses a student. Sometimes a student also can look up to you and say कि I want you as a mentor in my life. हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो इस सिचुएशन के साथ खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि बच्चा आपकी तरफ खींचे चला आता है, कि कोई भी उसको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर दे कम टू यू. एंड व्हाई डू दे कम टू यू? Is it because you talk to them very nicely? Is it because you explain to them things very nicely? Probably उनका कंफर्ट लेवल आपके साथ बहुत अच्छा है, राइट? जैसे श्री कृष्ण को अर्जुन ने चुना था एज आर मेंटर. वी शुड डेवलप आवरसेल्व्स in such a way that students should come to us to for explanations. They should come to us with their problems because we will be in a position to help them, to guide them, to advise them at every step. And let me make this very clear at this juncture only, that once a mentor, always a mentor. एक बार किसी मेंटर ने आपकी लाइफ में एक जगह बना ली है ना, तो आप देखेंगे आप हमेशा, आपकी चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, आपको वही मेंटर याद आता है कि लेट मी जस्ट टॉक टू हिम. भले ही वो मेंटर आपको बहुत सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, बट ओनली बाय टॉकिंग टू हिम, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, तुम्ही त्यांच्यासोबत आपलं मन मोकळं जरी केलं ना, तरी तुम्हाला एक 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 फीलिंग अशी येईल की ओ माय गॉड, या नाव आय एम रिलॅक्स्ड, now everything is going to be fine. So that is the importance of a mentor in our life. So I am moving ahead to the next slide. आज की डे में क्यों मेंटरिंग इतना इम्पोर्टेंट है, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, राइट? ये कॉलेज नहीं तो कोई और कॉलेज चाहिए. और हमें जब हम एडमिशन्स के लिए बैठते हैं, स्टूडेंट इंक्वायरी के लिए आते हैं, एकदम से कोई एडमिशन ले लेते हैं, कहे क्या नहीं, वो सोचते हैं, पहले पूछते हैं, 4 जगह जाएंगे. दे हैव अ रेंज ऑफ चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ देम. चॉइस भी है, डिलेमा भी है. ये मेरे घर से दूर है, मेरी फ्रेंड यहाँ एडमिशन नहीं ले रही है, मैं यहाँ एडमिशन लूंगा तो क्या मुझे मेरा मनचाहा स्पेशलाइजेशन मिलेगा क्या? यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं क्या? यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं कि नहीं है? सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, उसका इतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग हो गया है, और इसीलिए आज की डेट में मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. क्योंकि fortunate are those who can find an able charioteer to steer one's professional chariot through the morasses of professional landscape. आज आप 3 years कोर्स कर रहे हैं जहां पे आपके पास कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, 3 साल में बच्चे आपके पास आएंगे, पढ़ेंगे, एंड दे विल लीव द कॉलेज. maybe they'll go in for higher education, maybe they'll start doing a job, but do they come back to you when they are in problem? Do they come back to you, wish you, if not wish you, आजकल तो wishing वाला जमाना ही नहीं रहा है, but do they come back to you? And if yes, then you are definitely a mentor. मेंटर हमेशा चाहेगा कि आप प्रॉमिसेस बनाएं भी और उसको रखें भी.
wants you to make promises, और ये promises किसके लिए बना रहे हैं? The promises we are trying to make for ourselves. We are trying to make these promises for ourselves, and the mentor wants that you keep those promises. Whatever it is, whatever promise that you make, मुझे ये साल में above 75% लेना है. If that is the promise that I'm making to myself, the mentor ensures that you keep this promise, and he or she will help you in the entire process. Okay. आज जब मैं challenges की बात कर रही हूँ students के सामने, they are missing the social touch. अब pandemic में तो ये prove हो ही गया है. They are completely obsessed by the social media. Facebook तो अभी काफी बोर हो गया है उनके लिए. Snapchat is the next new thing. Instagram reels बनाने लगे हैं बच्चे. And in this process, लोगों से actual बातचीत कैसे करना, that social touch, that interpersonal relationship that you develop when you come to colleges, sit in the classrooms, conduct events for the colleges, वो पूरा मिस हो गया है. डेवलपिंग एन आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम आ गई है बच्चों के सामने कि खुद की आइडेंटिटी कैसे एस्टेब्लिश की जाए. दे आर अनेबल टू कनेक्ट थ्रू एकेडमिक एंड करियर गोल्स. अब पता है ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम गूगल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, वही आंसर हम लोग टिक मार्क कर देंगे. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. And therefore they are not able to match up to the expectations of the employers. Employers क्या चाह रहे हैं और वो आज की डेट में क्या है? As teachers हम हमारे classes ले रहे हैं, बराबर है? हम कोर्स कंप्लीट करते हैं, हम इवैल्यूएशंस लेते हैं, हम उनकी टेस्ट बराबर से ले रहे हैं, सब कर रहे हैं. बट इनपुट कितना हम लोग दे रहे हैं वो हमारे हाथ में है. वो लोग कितना अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं ये उनके हाथ में है. यहाँ पे हमारा मेंटर का रोल आता है अब्सॉर्प्शन में. हेल्पिंग देम अब्सॉर्ब सो दैट इवेंचुअली जो गैप क्रिएट हो रही है वो ना होके ब्रिज क्रिएट किया जाए. Bridge from where to the colleges they can move on to the industry. वो smooth transition होना बहुत जरूरी है. And therefore the role of a mentor comes in very handy. Peer pressure. आज की डेट में peer pressure के बारे में teachers को बताना is not something I'm used to. But peer pressure होता है, ये हम सब मानते हैं, जानते भी हैं कि कैसे बच्चे स्मोकिंग ड्रिंकिंग की तरफ जाते हैं. स्मोकिंग ड्रिंकिंग ही नहीं, बट कोई स्पेसिफिक गेम हो गया, कोई एडिक्शन हो गया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल एडिक्शन क्या, वो भी पीयर प्रेशर के लिए होता है. सो सोशल मीडिया इज देयर एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप्स इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर दीज किड्स. एक सेमेस्टर में कोई एक चीज होती है, दूसरे सेमेस्टर में कोई और. So that again creates a problem for them in a whole lot of way. Is this clear so far? हमारा concept clear है सबका? Yes, ma'am. So let us move ahead. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं about. Yeah, somebody saying something? I'm not able to hear you if somebody is saying something. कि अगर किसी से गलती से mic on हो गया हो तो देख लीजिए एक बार, and then mute yourself, and then you can continue जिससे भी आप बात कर रहे हैं. All right. So mentoring, यहाँ पे मैं दो तरीके की बात करने वाली हूँ mentoring की. Mentoring to teachers, newly inducted teachers. I believe जिस ग्रुप से मैं आज बात कर रही हूँ, they are having an experience of more than 5 to 10 years. Isn't that correct? Yes, ma'am. Correct. So we have an experience of ma'am, more yes. than 5 to 10 years, which means that we can mentor newly inducted teachers. Okay, Vaishali ma'am says no, absolutely not an issue, ma'am. पूछा इसलिए मैंने ये क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि हम मेंटरिंग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं. हम मेंटरिंग न्यूली इंडक्टेड टीचर्स के लिए भी चला सकते हैं.
मेंटरिंग प्रोग्राम्स फॉर, देखिए हर साल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं कॉलेजेस में, करेक्ट, CHV का, एडॉक फैकल्टीज का, एंड व्हेन वी renew the contract, maybe there are some new faculties who join us, there are some old faculties who we continue in the next year also. But if we want to have an environment in the college wherein everybody works together, देखिए आज जब हमको ऑनलाइन काम करना है तो ठीक है, ऑनलाइन तो हम लोग प्रोग्राम्स ले ही सकते हैं, बट कभी ना कभी जब कॉलेज शुरू होगा, और हो भी चुका था, काफी कॉलेजेस में प्रोग्राम्स भी हुए थे, तब हम सबको मिलजुल के जब काम करना होता है, and then the newly inducted faculties are somewhere completely lost, they don't know what to do. So right from what kind of attire to wear to किससे किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए, so from the basic etiquette to the classroom management, we can train them on everything. That is how you as a senior faculty can act as a mentor to the young newly inducted faculties. और सेकंड मैं बात करने वाली हूँ स्टूडेंट्स के साथ. So हमको the phrase that I've written is start from the first year. Yeah, somebody wrote something. I'm sorry, I just couldn't have a look at the chat box. I think HOD is the mentor for new teacher. Yes, can be. Absolutely. HOD can be a mentor. If not necessarily every time HOD is the mentor. It could be a senior colleague also who can act as a mentor. It could be somebody from another department. जब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, जैसे कि अभी मैं महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में भी विजिटिंग फैकल्टी हूँ, तो वहां पे इट्स नॉट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हु ट्राइज टू गिव मी इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू गो अबाउट इट. इट इज अ सीनियर फैकल्टी देयर जो मुझे बताते हैं क्या कैसे कब करना होता है, right? So at my institute, it could be something else. At your institute, it could be something else. If there is no policy as such, and I'm talking about a written document, अगर हमारे पास ऐसी मेंटरिंग की पॉलिसी नहीं है, तो आप आपके प्रिंसिपल को, आपके डिपार्टमेंट हेड को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि न्यूली इंडक्टेड फैकल्टीज के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स तो होते ही हैं, उसके साथ साथ अगर हम एक मेंटर भी जोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा. क्यों अच्छा होगा? बिकॉज इंडक्शन प्रोग्राम एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मेंटर लंबे समय तक जाता है, राइट? और मेंटर के क्या क्या फायदे होते हैं वो हम आगे चलने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे. बट द आंसर टू योर क्वेश्चन दैट कैन HOD एंड प्रिंसिपल आर दी be the mentors, yes, definitely they have to be the mentors, the prima facie mentors, but other than that there could be somebody else also. Recently, I'm also teaching to Bennett University students in Noida. So I am in touch with their HR department of the university, and HR department is giving me all kind of instructions, notifications, messages, connecting me to the students, making sure that my classes are going online, sending me the timetable, creating ID for me. ये सब उनका HR डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है बेनेट यूनिवर्सिटी, तो उनका HR डिपार्टमेंट वो थिंग हैंडल कर रहा है. अगर हमारा एक छोटा सा UG कॉलेज है तो भले ही HR डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसे एक दो सीनियर फैकल्टीज ये काम अपने हाथ में ले सकते हैं. आगे चल के मैं आपको इसके ये भी दिखाऊंगी कि फॉर्मेट कैसा होता है और आप क्या क्या कर सकते हैं, फिर आप चाहें तो आपके हिसाब से आप इसको ऑल्टर कर लीजिएगा. All right. So let me move ahead and try to talk about the basic concept, which is mentoring. So mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and push in the right direction. So whenever we are talking about mentoring as a system that we have to develop, we need to have students, we need to have teachers who will be in a position to accept us as mentors. And for that, we need to establish that kind of um, respect in them, that yeah, ये कोई तो भी है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा,
राइट? और ये कब होगा? जब आप उसके साथ एक कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाओगे। नाउ लेट मी आस्क अ फ्यू ऑफ यू कि जब आप बोल रहे हैं कि मेंटरिंग है और मेंटरिंग करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ डू यू मीट online, obviously, with your mentees? How many times in a month? Online meet? 1, 2, 3? और is it 6 months में एक बार? कैसी सिस्टम है आपके आपके मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए so that I can build on that. Anyone? कोणी पण सांगा, असं काही हे नाही आहे की One month, one time. 1 month 1 time, महीने में एक बार मिलते हैं। जी। और कोई जो हफ्ते में हाँ जी। मैम अभी जो ऑनलाइन सेशन शुरू है उसके लिए एज पर इंस्ट्रक्शन वी हैव रिसीव्ड इज हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे जो हमारे मेंटीज है दे कैन कांटेक्ट अस एनी टाइम विद देयर कन्वीनियंस और अगर उनको कुछ काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है और अदरवाइज वी अरेंज मीटिंग्स फ्रीक्वेंटली एज पर देयर रिक्वायरमेंट मतलब अगर हमको उनको कुछ स्पेशल कन्वे करना है तो वी अरेंज मीटिंग एट आवर कन्वीनियंस अदरवाइज वंस इन अ मंथ अरेंज करते हैं Once in a month, and you have formed a WhatsApp group. It's the easiest Yes. way to talk to people. Yes, fantastic. Now, जब हम ये बोल रहे हैं कि हम उनकी कन्वीनियंस से जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो हम सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं एंड मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जब हम मेंटरिंग को अगर हमको इसको 100% लागू करना है तो हम वेट नहीं करेंगे फॉर स्टूडेंट्स टू कम टू अस विद देयर प्रॉब्लम्स। मैं चाहूंगी कि आप लोग आपका एक कैलेंडर बना लें, जिस एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं या लेसन प्लान बनाते हैं वैसे ही हम लोगों को एक फॉर्मेट बना लेना है। एंड जैसे हम लोग एक चेकलिस्ट बनाते हैं ना, ओके दिस इज डन एंड अ टिक, उस हिसाब से हमें स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रखना है। पॉइंट नंबर 2, हम लोग जनरली व्हाट्सएप ग्रुप में बोलते हैं देयर शुड बी नो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैसेजेस वगैरह, ऐसा है क्या हमारे साथ ग्रुप्स में? नो मैम You allow the students to post anything in the group? No, ma'am. मतलब नो इन द सेंस पोस्ट नहीं करने देते हैं कि पोस्ट करने देते हैं? मैम दे आर अलाउड टू पोस्ट बट इट इज सेड कि बहुत ज्यादा इरेलेवेंट या समथिंग नॉनसेंस ना पोस्ट करें नॉनसेंस ना पोस्ट करें, बट कोई अगर Related मोटिवेशन topic. यस अदरवाइज दे related आर फ्री topic टू है तो पोस्ट post कर सकते हैं। दे आर फ्री टू पोस्ट। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। तो मैं यहाँ पे आपको एक ये बताती हूँ, आप चाहो तो एक ऐसा कोई रेजिम लगा लो जहाँ पे रोज अफर्मेशंस हो, चाहे तो मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, जरूरी नहीं आपके कॉलेज में यही प्रॉब्लम हो। कितने ग्रुप के कितने बच्चे हैं आपके ग्रुप में मेंटरिंग के, बबीता जी? मैम 20 to 25 पर टीचर अलॉट है 25, चलो मान लेते हैं 25 बच्चे हैं। और कॉमनली जो मैंने देखा है अपने बच्चों को जो प्रॉब्लम रहती है कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम रहती है, बराबर है? यस इंग्लिश स्पीकिंग की भी प्रॉब्लम रहती है काफी बच्चों को। यस यस, सो व्हाट यू कैन डू इज हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में एवरी डे वी कैन पोस्ट एक वीडियो जो हम आसानी से यूट्यूब से उठा सकते हैं अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, अबाउट इंग्लिश ग्रामर, और आसानी से उसी से रिलेटेड एक आधा क्विज जो कि अगेन हम लोग गूगल से उठा सकते हैं, जैसे englishclub.com हो गया या Duolingo ऐप हो गया या फॉर दैट मैटर इंग्लिश ग्रामर हो गया, कहीं से भी एक उठाइए रेलेवेंट सा जो आपने वीडियो लिया है एंड पोस्ट इट। व्हाट हैपेंस इज आपके ग्रुप में एक लूप चलता रहेगा। होता क्या है, एक ने किसी ने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून डाला, स्टॉप, फिर कुछ दिनों बाद कुछ आता है, देन स्टॉप। आई वांट दैट द ग्रुप शुड बी एक्टिव, एवरी देयर शुड बी अ बज इन द ग्रुप। मेंटरिंग अगर हमको बहुत ही टू द टी करना है ना, तो हमको ये बज ग्रुप में क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ इट इज अप टू यू
कि आपको किस टाइप का बज क्रिएट करना है. इज इट समथिंग रिलेटेड टू द एकेडमिक्स, इट इज समथिंग रिलेटेड टू अ स्किल जो आप चाहते हैं आपके बच्चों में हो, या बच्चों ने आपको कोई चीज बताई है कि मैम हमको ना पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता है, या फॉर दैट मैटर अगर कोई बच्चे आके बोलते हैं कि मैम हमको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ मटेरियल बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. सो मेक श्योर there are people, because I'm saying an ear to listen and push in the right direction. There always be ears to listen. What we need is that push in the right direction should always be there. Now, when there's a quote I have written over here, I'll just simply read it out for you, which says about counselor. Children often seek your help, and always they will find a thoughtful, helpful mentor who's patient, warm, and kind. हमेशा वही टीचर्स के पास बच्चे जाएंगे, those who are able to listen to their problems, who are thoughtful, they'll think before they speak, who are patient and who are warm and they are kind. And because mentoring is a reciprocal thing, right? You give something, you take something. Again, it's very dynamic. Every now and then in every college, everybody will have a different sort of a process. कोई बोलेगा मैम ये हमारे कॉलेज में नहीं हो सकता, हमारे बच्चे उस लेवल के नहीं है, या हमारे बच्चों के साथ तो बहुत अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर हम वो प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करें, क्या हम उनके सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे, would be that question number one. If we are able to find the relevant answers to the questions, can we make it work in some way or another? If yes, then very good for you. Then mentoring would be something which is, yeah, fantastic, go ahead types me kind of thing ho jayega. So at this juncture, I want a few of you to tell me what are the challenges that you face when it comes to mentoring. आपको क्या दिक्कतें आती हैं जब आप मेंटरिंग की बात करते हैं बच्चों के साथ या कॉलेजेस में, आपके कॉलेज में? Anyone? मैम एक्चुअली जब हम उसी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी के मेंटर जब होते हैं ना, तो बच्चे ओपन अप होने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं मैम. खुल के बात नहीं समझा नहीं करते. प्राजक्ता जी मुझे. हाँ मैम, जैसे मैं एक्चुअली एमबीए को भी पढ़ा चुकी हूँ और अभी फिलहाल मैं बीसीए को पढ़ाती हूँ. ठीक है. Okay. तो मैंने मेंटरिंग में प्रॉब्लम क्या देखी है कि बच्चे ना खुल के बात नहीं करते हैं. Okay. ठीक है. हाँ, उन्हें ऐसे लगता है कि हम किसी मतलब सब्जेक्ट फैकल्टी के बारे में बात करेंगे और वो तो सब्जेक्ट फैकल्टी, ये पर्टिकुलर फैकल्टी की बहुत अच्छी दोस्त है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. Okay, okay, okay. तो ओपन अप excuse me. करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मैम उनको. मतलब वो नहीं हो पाते वो उतने ओपन अप. उनको डर लगता है कि इंटरनल्स में गड़बड़ ना कर दे, कहीं मैम उनको ना बता दे. हाँ हाँ हाँ. Okay, okay, accepted. Yes. कोई और कुछ बोल रहा था? हाँ हेलो मैम. जी. हाँ मैम, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं बच्चों की कि वो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं. जैसे हम रूरल में है टीचर, तो जैसा हाँ, बस का कोई प्रॉब्लम देते हैं तो वी कांट बरोबर है. सॉल्व देयर, नहीं क्या? और हाँ, ऑनलाइन अभी है तो कोई नेट का प्रॉब्लम है, मोबाइल का प्रॉब्लम है, बरोबर है. तो ऐसे कुछ चीज होते हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते मैम. बाकी तो हम बुक्स वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लाइब्रेरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये करेक्ट. बस इंटरनेट और मोबाइल ये नहीं सॉल्व कर सकते. करेक्ट. काही अशा गोष्टी असतात ज्या आपल्या हातात नाहीये आणि त्याच्यावर आपण खूप काही करू पण शकत नाही. पण प्रॉब्लेम हा जो आता प्राजक्ताजींनी डिस्कस केला की स्टुडंट्स डू नॉट ओपन अप बिकॉज दे फियर ऑफ द इंटरनल्स or they fear that you might talk to the other faculty. See, I'll tell you, in my 15 years of experience, people have been coming and talking to me about, yes, other faculties also. एक बहुत फाइन लाइन होता है जो हमें ड्रॉ करना है, that you are not supposed to speak about any other faculty in a negative way. You can ask that individual, say for example, you are my mentee and you are not understanding something which is taught by
other faculty. And students have this tone, मैम आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, शी स्पीकिंग वेरी फास्ट इन द क्लास, वो क्या पढ़ाते हैं मुझे कभी समझ में नहीं आता है, या वो बोर्ड जल्दी रब कर देते हैं, या नोट्स नहीं देते हैं, एक्सेट्रा। अब इसका आपका जवाब क्या होना चाहिए? अच्छा कभी नहीं पढ़ाते हैं, बोर्ड हमेशा रब कर देते हैं क्या, तुमने बाजू वाले को क्यों नहीं पूछा, उसकी कॉपी में से क्यों नहीं कर देते हो? योर क्वेश्चन शुड बी, क्या नहीं समझ में आता है, बुक में से पढ़ने की कोशिश की है क्या? चलो बुक लेके आओ, वी विल ट्राई टू रीड इट टुगेदर। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे खुल के बात ही नहीं करते हैं, तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना है, और बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो हम गूगल फॉर्म के थ्रू एक सर्कुलेट कर सकते हैं फीडबैक फॉर्म। दूसरे फैकल्टी के बारे में नहीं पूछिएगा, प्लीज अपने खुद के कोर्स के बारे में पूछिए, या एक एंड में आप जनरल क्वेश्चन डाल दीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और नेम का जो कॉलम है उसको ऑप्शनल छोड़ दीजिए, कंपलसरी मत कीजिए बच्चे को भरने के लिए, तब शायद बच्चा ओपन अप हो। हाँ, जब फिजिकली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब this problem may occur, and at that point of time through observation you might be able to understand that the individual is not understanding anything of this particular subject. दिस में अब जैसे महेश जी ने बताया कि बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि भैया मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, या मेरे घर में इंटरनेट नहीं प्रॉपरली रेंज आती है, या ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। एट सच पॉइंट ऑफ टाइम बी जस्ट वेरी काइंड टू देम, बी पेशेंट, और कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। यू कैन जैसे महेश जी ने बताया, हम लाइब्रेरी अवेल करा दें उनको, या उनको बताएं कि ठीक है आ नहीं सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, wherever you are, keep on studying, keep that flame alive. I remember I had this girl called as Mamta Alchettiwar, जो पांडुरना के आगे उसका एक छोटा सा गांव था, वहां से वो अप डाउन करती थी। her father had expired, her mother was a farm laborer, she obviously did not have a laptop at her home। MBA में हमारे बच्चों को हम लोग कंपल्सरीली इंटर्नशिप्स करनी होती है। she could not do an internship because नागपुर में रहने खाने के उसके पास पैसे नहीं थे। So we tried to connect to NGO in Pandarkavda, which was quite near to her place। वहां से भी उसको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता था, बट NGO में बात करके उसकी वहां पे हमने इंटर्नशिप लगा दी। And I tell you the kind of bond that girl developed with us, वो नागपुर में आके जब उसका प्रोजेक्ट रहता था वो नागपुर में आती थी, कॉलेज में बैठ के काम करती थी, बिकॉज लैपटॉप तो था नहीं, तो शी डिड एवरीथिंग थ्रू द कॉलेज IT लैब, एंड शी वर्कड रियली हार्ड। सो कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, फाइन, लीव इट, जस्ट बी देयर फॉर देम। ये ही की आमचा प्रॉब्लेम कोणापर्यंत तरी पोहोचलाय, आणि तो प्रॉब्लेम अक्नॉलेज्ड है, लोग सुन रहे हैं, मेरी टीचर सुन रही है मेरी बात, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। इतना भी कभी कभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट्स द इसेंस ऑफ अ मेंटर। यही ये once you start developing these things, and I'm sure most of you have, people will be drawn towards you. You will have relationships for lifetime with your students. Because when I talk about mentoring, I talk about motivation, I talk about giving advice, I talk about celebrating success with my students, I talk about telling them the right and wrong, giving them the right direction. I am a coach also at times to them. I give them the necessary kind of support. I set goals with them, not for them. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपने गोल सेट नहीं करना है, आपने उनके साथ गोल सेटिंग में मदद करनी है। जब हम स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं, राइट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ऐसे गोल्स उनके साथ त्या मुलाची किंवा मुलीची कुवत पाहून की किती जमेल आहे, इतक्या वेळात करू शकेल आहे का, मग हो तर चल बेटा हा आपण गोल सेट करूयात, आणि तुला या गोल पर्यंत पोहोचण्यासाठी काय काय स्टेप्सची गरज लागेल आहे। दॅट इज हाऊ यू हेल्प, नॉट इन सेटिंग इट फॉर देम, बट बीइंग देयर फॉर सेटिंग इट फॉर देम। ये डिफरेंस हमको उतना याद रखना है।
and then obviously training them at times कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, etc. Moving on, when we talk about mentors, are generally of 5 types. That's what I've read. कि an expert in their own field, you know, एकदम रथी महारथी हैं, आप उनको कुछ भी पूछ ले, they'll be able to tell you. They are a personal champion. उन्होंने अपनी life में इतने experiences देखे हैं that they know how to deal with the various problems and issues of life. They are a peer, they are your colleague, they are an anchor to you. So whenever you go, you know, swaying अगर आपका चल रहा है, वो खड़े हैं एकदम, you know, like a firm anchor of your life, saying that, you know, this is what you have to do, this is what you have to stay. And they are also a mentee at times. They have been learning from someone and then they have come to this position of a mentor. आप कहाँ पे fit होते हैं? Are you a peer? Are you an anchor to somebody? Are you a personal champion? Are you an expert in your own field? What kind of a mentor would you like to be? How would people like to remember you? तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग. आपसे मैं ये पूछूंगी, how would people remember you when you leave the organization? मान लीजिए आज आपका रिटायरमेंट डे है, आज आपकी सेंड ऑफ पार्टी है, एंड जैसे कॉलेजेस में रिटायरमेंट फंक्शंस होते हैं, जब सब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, फॉन्ड मेमोरीज शेयर करते हैं, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट्स आपको देती हूँ. सबको लिखिए कि लोग आपके बारे में, लोग आपको कैसे याद रखेंगे. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वर, हाउ यू वर, हाउ स्टूडेंट्स रिमेम्बर्ड यू. तो आपको 2 लिखना है. 1, from the student's point of view, how will students remember you, and how will your colleagues and the other staff of the college remember you? समजलंय सगळ्यांना? करायचं काय आहे आपल्याला इथे? हो मॅडम. एक 2 मिनिटं घ्या, विचार करा थोडासा आणि लिहा की how will students remember you, how will faculties remember you. Okay, write down 3 or 4 sentences about it. आणि खूप वेग शब्द नको आहेत. बी व्हेरी स्पेसिफिक. व्हेन आय से अ गुड टीचर म्हणजे काय ते पण एक्सप्लेन करा थोडंसं मला. आणि ज्यांचं होईल आहे त्यांनी प्लीज अनम्यूट करा आणि यू कॅन जस्ट यु नो शेअर की काय आहे म्हणून. You can turn on your videos also so that when you speak they will be able to see you also. May I speak, ma'am? Please go ahead, ma'am. Ma'am, for me, a good teacher is something like from student point of view, they should remember me as a good teacher with perfect knowledge Okay. about his or her subject. Okay. He should be very hard worker teacher. They should remember me as a hard worker, as a Okay. punctual teacher, and a helpful teacher. I expect this. Okay. And from colleague point of view, I think they should say something like she was very active with active participation in all functions and all. She is a very positive thinker, and she is very cheerful. Okay. That who cheer for all good things, and of course she is helpful. This Great. is my point of view. Great. Fantastic, ma'am. Great. So you Thank want you. to be remembered as someone who will always be, you know, supportive of जो भी कॉलेज में चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्कर है, और बच्चे आपको एक नॉलेजेबल टीचर की तरह रिमेम्बर करें. करेक्ट? एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड.
Yes, ma'am. ग्रेट, फॅन्टॅस्टिक. अजून कोणी प्लीज आपल्यासोबत शेअर करू शकेल? Yes, ma'am. या, प्लीज गो अहेड. A good, yeah, a good teacher is always a teacher who understands the students very well, the whatever concerns students are having. And at the same time, they also have the sense of responsibility as a teacher, as a mentor, and also as a person whenever they deal with the students and also with the colleagues. Then Correct. another, students always see teacher as a role model. So they should always keep in mind that whatever they are behaving like or whatever they are talking, students used to imitate them because they see it as a role model. So always they have to keep this in mind whenever they are in their workplace. And another point is they should be honest to the students. Many times it is that student asks something to the teacher. It is not always that the teacher knows everything. But what if they are not known particular question? Say to students that I'll get back to you later on, I confirm this all. So you should, as a teacher, you should be honest to yourself as well as you should be honest to the student also. This is the thing. Great, Shivani ma'am. Thank you so much for your inputs. That the teacher should say that, okay, I know it, I don't know it, should be a role model. Yes, great, fantastic. Anyone else who would like to pitch in something different other than this? मॅम तुम्हाला सांगायचंय Nilesh, बोला. चांगला शिक्षक दोघांनी पण सांगितलं की मला चांगला शिक्षक व्हायला आवडेल की जो विषयामध्ये चांगला आहे, तो शिस्तबद्ध आहे, जो मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेईल अशा पद्धतीचा शिक्षक म्हणून ओळख निर्माण झाली तर चांगलंच आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की एक मित्र ह्या भावनेतून मी पाहतो की ज्याच्या की आपल्याला पाहून असं वाटलं पाहिजे त्यांना की हा एक खूप चांगला मित्र आहे की याच्याकडे मी माझं मन व्यक्त करू शकतो, माझ्या भावना व्यक्त करू शकतो, किंवा त्यांनी माझ्याकडे आधार म्हणून बघितलाय की हा एक मित्र माझा आहे की ज्याच्याकडे मी चांगल्या भावना म्हणजे एक आधार म्हणून मी त्याच्याकडे पाहू शकतो, त्याच्याकडे जाऊ शकतो, असं व्यक्तिमत्व त्या ठिकाणी व्हायचं. हॅलो. हो निलेश सर, तुमचा आवाज येतोय, मॅडमचा आवाज नाही येते. हॅलो मुक्ताई मॅम. मॅडम तुमचा आवाज नाही येत आहे. पार्टिसिपंट, माझा आवाज येतोय का? येस मॅम. Yes, येस. ma'am. ओके, प्लीज वेट. Yes, ma'am. After we leave the college, will they come to us for? हॅलो हाँ मॅडम. जी मॅम. हाँ. मॅडम आवाज आता यायला लागला, आतापर्यंत येत नव्हता. माझा हो 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 हो. कोणताच आवाज येत नव्हता? नाही मॅम, निलेश ma'am. सरांनी जेव्हा त्यांचे व्ह्यूज दिले ना, त्यानंतर हा. तुमचा आवाजच नाही आला मॅम. ओके ओके, आय विल रिपीट. आता येतोय माझा आवाज क्लिअरली ना? येस मॅम, आता येतोय. ओके. आणि मला तुमचा येत नव्हता, मला दिसत होतं की यू आर स्पीकिंग बट काहीच आवाज येत येस नव्हता. ओके, आणि इट इथं मस्ट थोडा बी. लो बँडविड्थचा आयकॉन देतोय आहे तो व्हिडिओ ऑफ ठेवाल तर आय थिंक मग प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह माझा व्हिडिओ ऑफ ठेवते. Yes. ऑल राईट. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी फॉर दिस टेक्निकल इश्यू. issues. सॉरी. येस. या. सो जेव्हा निलेश सर बोललेत की एक शिक्षक आपला आधारस्तंभ म्हणून आपल्याला दिसायला लागतो, एक मित्र म्हणून दिसायला लागतो, तेव्हा आपला एक मेंटरची जर्नी सुरू होऊन जाते. मग तेव्हा आपण नुसतं शिक्षक म्हणून नसतो त्या मुलासाठी, मग आपण एक पायरी चढलेलो असतो ऑलरेडी. आपण त्या मेंटरिंग प्रोसेसमध्ये ऑलरेडी एंटर केलेलो असतो आणि देन द प्रोसेस ऍक्च्युअली स्टार्ट्स. द मेंटरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स when the students don't think of you only as a subject expert.
कि इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, वाओ मैन, इनके अच्छा तो कोई केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता है, या मैडम के जैसा तो अकाउंट्स कोई पढ़ा नहीं सकता है। आवाज येते है ना? यस मॅम, यस. येस Yes, येस ma'am. Yes, ma'am. Yes. सो असं जेव्हा होतं तो येस, ऑब्विसली आपण म्हणू की इश्यूज आहेत आणि प्रॉब्लेम्स येतीलच कधी ना कधी, मुलांना काही ना काही इश्यूज येतील आहे. फक्त सब्जेक्ट एक्सपर्ट म्हणून नाही, पण त्या सब्जेक्टच्या व्यतिरिक्त पण तो व्यक्ती आपल्याकडे काय म्हणून बघतोय, तो स्टुडंट आपल्याकडे काय म्हणून बघतोय, त्याच्या आपल्याकडनं काय अपेक्षा आहेत, हे जेव्हा आपण जाणून घेऊ, त्या मोमेंटला we will be moving on to the step of a mentor. So let me just move ahead. Yeah. कोणी काही हॅलो बोलत मॅम. होतं? या हा, येस मॅम, महेश बोलताय. मॅम, बोला मला बोला. असं सांगायचं गुड टीचरसाठी जसं टीचरचं एक गुड कम्युनिकेशन असायला पाहिजे, लिसनिंग तर हे सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे. तर Correct. ऍक्च्युअली मला असं वाटतं की मुलांना मॅडम आपण रिस्पेक्ट पण द्यायला पाहिजे, नाही का, अरे तुरे नाही म्हणायला पाहिजे, जसं अगदी इकडे बरोबर. रेती अरे, नाही का. तर अगदी तेव्हामुळे पण ते टीचरचं एक व्ह्यू आपल्याला दिसून येतो, नाही का. आणि अगदी मला असं वाटतं की मी जसं क्लासमध्ये सांगतो की काही प्रॉब्लेम असलाच तर एक मोठा भाऊ म्हणून तुम्ही मला सांगू शकता, घरचे प्रॉब्लेम जे काही आहे, तर आपण प्रयत्न करू की ते सॉल्व्ह करण्याचा. तर त्यावेळेस ही एक क्वालिटी तिथे मला असं वाटतं की गुड टीचर म्हणून आपण सांगू शकतो. अगदी मॅम, अगदी बरोबर आहे. अगदी बरोबर बोललात तुम्ही महेश सर, की थँक्यू. आपण जेव्हा रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करतो मुलांकडनं, की मुलांनी आपल्याला सर मॅडम म्हटलं पाहिजे, अरे तुरे नाही म्हटलं पाहिजे, तर दॅट शुड बी रेसिप्रोकेटेड. म्हणून मी म्हटलं ना, मेंटरिंग इज रेसिप्रोकल. जेव्हा आपण मुलांना रिस्पेक्ट देऊ, तेव्हा ते आपल्याला रिस्पेक्ट करतील. आणि आपल्याला रिस्पेक्ट केला पाहिजे म्हणून नाही, आपण त्यांचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे ऍज अन इंडिव्हिज्युअल, की येस, त्याला पण काही मतं असतील आहेत, त्याचे पण काही प्रॉब्लेम्स असतील आहेत, आणि जेव्हा ते आपण समजावून घेऊ, तेव्हा इट वुड बी अ विन विन सिच्युएशन फॉर बोथ द पार्टीज. इथे मी बोलते आहे मेंटरिंग फॉर टीचर्स या स्लाइड मध्ये, की तुम्ही फॉर्मल मेंटरिंग प्रोसेस टीचर्सचा कसा सुरू कराल. तर नीड अनालिसिस म्हणजे तुम्ही जेव्हा तुमच्याकडे नवीन CHBs येतात किंवा अडॉक फॅकल्टीज येतात, त्यांना याच्या आधी कुठला एक्सपिरियन्स आहे का हे बघतच असता. जर अगदी न्यूली जॉईन्ड असेल की नाही, पहिल्यांदा आपल्याकडे आलेले आहेत, त्यांना आपण कशा कशाबद्दल माहिती द्यायला पाहिजे, त्यांना क्लासरूम मॅनेजमेंट बद्दल माहिती द्यायला पाहिजे का, एक स्ट्रक्चर तुम्ही डेव्हलप करू शकता तुमच्या कॉलेजमध्ये. तुम्ही त्यांचे क्लासेस ऑब्झर्व करू शकता. आजकाल ऑनलाईन आहे, तर तुम्ही ऑनलाईन यू कॅन जॉईन इन अँड लिसन टू देम. त्यानंतर नीड अनालिसिस झाल्यानंतर की त्यांना कोणत्या ट्रेनिंगची गरज आहे का, मग ते क्लासरूम मध्ये पेडगॉजिकल टूल्स असो किंवा एखादी नवीन टेक्निक किंवा शिकवण्याची एखादी सोपी पद्धत, ती तुम्ही सांगू शकता तुमच्या न्यूली इंडक्टेड फॅकल्टीला. त्यांना एक वीकली किंवा मंथली फीडबॅक, आणि हा निश्चितपणे HOD किंवा प्रिन्सिपल हा देऊ शकतो की ओके बेटा, दिस इज व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्व फॉर द वीक. हा तुमचा स्टुडंट फीडबॅक रिपोर्ट होता. जेव्हा मी पहिल्यांदा महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये ऍज अ विजिटिंग फॅकल्टी जॉईन झाले लास्ट इयर, so they gave me a weekly report that what kind of classes that I had conducted for those students, because या सगळ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीज मध्ये स्टुडंट फीडबॅकच्या बेसिसवरच फॅकल्टीला ठेवल्या जातं. If the student feedback is bad for a particular faculty, that faculty is not continued after. असं नाहीये की आता कॉन्ट्रॅक्ट बनवलाय तर पूर्ण करूच. The moment the student feedback is not improving, that faculty is asked to leave. सो इफ जेव्हा तुम्हाला लक्षात येत आहे, तुम्ही स्टुडंट्सला HOD असो किंवा प्रिन्सिपल असो, तो जाऊन विचारू शकतो की ओके, इज इट ओके, इज द फैकल्टीज तुम्हाला समझता है का, उनकी आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या, उनका सब्जेक्ट नॉलेज बराबर है या. ओम प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ओके, गलती से माइक ऑन हो गया होगा उनका. ओके, सो मंथली और वीकली फीडबैक न्यूली इंडक्टेड फैकल्टीज को देना बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन improve on the basis of that. Okay, suggestions are extremely important, and these suggestions can be given by the mentors to the faculty. So say for example,
the principal gives a feedback to the faculty that you need to improve on your teaching style in the sense that आप blackboard की जगह पे कुछ और नए innovative tools use कीजिएगा. So the mentor can then train the newly inducted faculty into using some new pedagogical tools like maybe peer deck use कराएं या Padlet का use कराएं या फिर Prezi video के through उनको presentations बनाना सिखाएं, something of that sort. Powtoon में animations बनाना सिखाएं, depending on what the students want. Accordingly, the mentor can train the new teachers. तो ये मैं आपको बताया है, मैंने आपको इसीलिए कि अगर आपके कॉलेज में प्रोग्राम नहीं है न्यूली इंडक्टेड फैकल्टीज के मेंटरिंग के लिए, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं आपके कॉलेजेस में. और जो कि आप लोग मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस के हैं, तो आप लोग खुद एज मेंटर्स आपके जो कॉलेज में नए शिक्षक किंवा शिक्षिका येतात त्यांना तुम्ही मेंटरिंग करू शकता. ओके, कोणाच्या कॉलेजमध्ये आहे का असा प्रोसेस? कोणाच्या पण? नो मॅम, नो. नो मॅम, नॉट फॉर मॅडम टीचर्स. डिपार्टमेंटल लेवलवर थोडं होतं, डिपार्टमेंट. ओके ओके. पण या फॉर्म मध्ये अगदी नाहीये असं, पण या होतं डिपार्टमेंटल लेवलवर, डिपार्टमेंटल लेवलला आपण करून घेतो. ओके. एलईडी मध्ये. हो, जसं प्रचिती मॅम सांगतात आहे की एलईडी मध्ये होतं, तर मग आपण डिपार्टमेंटल लेवलला सुद्धा, आणि मी हे तुम्हाला का एवढं एम्फसाइज करते कारण मी बोलली की हे नॅक क्रायटेरिया मध्ये कामात येणार आहे. तर मग जेव्हा डिपार्टमेंटल लेवलवर करतो, मग ह्याचं डॉक्युमेंटेशन का न करायचं, आणि मग करतोच आहे तर मग एक चांगल्या पद्धतीने करायचं. मी तुम्हाला याच्यानंतर शेवटी याचा फॉर्मॅट दाखवते, म्हणजे तुम्ही त्या हिशोबाने तुमच्या कॉलेजेसमध्ये त्याला ऑल्टर करू शकता आणि यूज पण करू शकता. ओके, सो थिंक अबाउट इट. हा प्रचिती मॅडम. ओके मॅडम, थँक्यू. ओके ओके, ग्रेट. तर आपण याच्याबद्दल बोलूयात की कॉलेजेसमध्ये अजून काय काय करता येईल व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटरिंग टू टीचर्स. दुसरी गोष्ट तुम्हाला माहित असेल, मेंटर फॉर चेंज म्हणून सुद्धा आपण स्वतःला रजिस्टर करू शकतो. युजीसी AICTEच्या पुष्कळ साऱ्या स्कीम्स आहेत मेंटरिंगच्या. यू पीपल आर ऑल अप्रूव्ड टीचर्स, विच मीन्स यू आर एलिजिबल टू बिकम मेंटर्स फॉर चेंज. तर तुम्ही जरूर या स्कीम्सचा फायदा घ्या आणि मेंटरिंग प्रोसेसमध्ये एंटर करा. ओके, so when we talk about process of mentoring, आणि महेश जी सुद्धा बोलले that rapport building, students ला आपल्याबद्दल एक रिस्पेक्ट असला पाहिजे. they should feel that kind of warmth. आणि ती कधी येईल? कम्युनिकेशन. बेसिक सुरुवात आपली कम्युनिकेशन मध्ये होते. वी आर ऑल चिट चॅटिंग, सगळेजण बसले आहेत, एक स्टुडंट येतो क्लास स्टाफ रूम मध्ये आणि सेज मॅडम आय वॉन्ट टू टॉक टू यू, सर आय वॉन्ट टू टॉक टू यू. हा बोल, काय बोलायचंय? इथून जनरली आपली सुरुवात होते. अँड दॅट वन इन्स्टन्स द स्टुडंट सेज दॅट बोलू की नाही बोलू, बोलू की काय करू. जेव्हा मेंटरिंग आपल्याला सुरुवात करायची आणि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपल्याला स्टूडेंट सेग्रीगेट करून दिल्या जातात. जसं बबीता जी ने जब भी बताया कि 20-25 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसके अंतर्गत हम हमारा मेंटरिंग प्रोसेस चलाते हैं. क्या आप में से कोई बता पाएगा कि सबसे पहली एक्टिविटी आपने क्या ली थी आपके स्टूडेंट्स के साथ? सबसे पहली जब आपको ग्रुप अलॉट हुआ था. इंट्रोडक्शन मैम. इंट्रोडक्शन क्या, कैसे लिया था इंट्रोडक्शन हिमानी जी? सिर्फ नाम पूछा था कि कोई एक्टिविटी कराई थी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इंट्रोडक्शन जस्ट उनका नेम, हॉबीज क्या है उनकी, इस तरीके से इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद में उनसे एक बच्चे से उनका नाम, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका 12% 10%, जैसे हम BSc को पढ़ाते हैं तो सो ये सारी चीजें.
उनकी हॉबीज, या फिर वो यहीं एडमिशन लेना चाहते थे, या फिर वेदर और कुछ था, या फिर यहाँ लेना पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग मतलब उनसे इन द फर्स्ट, जब फर्स्ट इंटरेक्शन, व्हेन वी डू द फर्स्ट इंटरेक्शन, तो ये सारी Correct. चीजें हम लोग मतलब करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू, मैम और सबसे सही पहले भी है। तो हम सबसे पहले देखते मैम हैं हम लोग पहले इंपॉर्टेंस क्या परिचय है तो हमारे बच्चे लिए, को इंपॉर्टेंस सही और वो कौन से यानी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, यानी वो कौन से कंडीशन से हाँ जी, बिलोंग ये करते भी। हैं, उसके हम्म, उसके हम्म, बारे में पहले हमने उनसे जानकारी प्रदान की, यानी जानकारी ली। उसके बाद हम्म। ही मेंटर मेंटर की प्रोसेस शुरू की। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया कि ये आपने किया, जो बताया कि किस बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत आवश्यक होता मैडम है हमारे लिए सुनो पता करना कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहता जी है, घर परिवार में कितने लोग हैं उसके, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सही किए सर आपने, करेक्ट। आजकल हम बच्चे इमोशनल फ्रंट पे बहुत ज्यादा अनसर्टन होते हैं, बहुत बहुत सही, करेक्ट, करेक्ट, वेरी ट्रू, दे आर बहुत वेरी ज्यादा, अनसर्टेन। दे आर वेरी अनसर्टन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जज करने के पहले हमें उनके कुछ पैरामीटर्स है जो वी हैव टू स्टडी एज अ वेरी टीचर, वेरी एज अ ट्रू, वेरी ट्रू। एज अ मेंटर जब हम रैपो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तब हमको एक बेसिक फॉर्मेट, जो अगेन मैं आपके साथ शेयर करूंगी टुवर्ड्स द एंड, जो आपको अगेन इन नैक क्राइटेरिया 2 रिकॉर्ड कीपिंग में मदद आएगी, कि हम बच्चों के साथ जब रैपो बिल्ड करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि किस बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, उनका 10th 12th का परसेंटेज क्या था, घर परिवार में कितने लोग हैं, ये हम धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम वी स्टार्ट आस्किंग देम दीज क्वेश्चंस। जैसे हिमानी जी ने कहा, यू नो दे आर वेरी इमोशनली समटाइम्स दे आर नॉट स्टेबल, पता नहीं होता है कि कौन कैसे रिएक्ट कर जाएगा, सो यू टॉक टू देम अबाउट यू देयर हॉबीज एक्सेट्रा। अब जब हम ये इंट्रोडक्टरी सेशंस लेते हैं, सो आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट बी प्लानिंग फॉर इट। वन फाइन डे बस आज मुझे इंट्रोडक्शन लेना है ऐसा न करते हुए, अगर आप पहले से ग्रुप में उनको जानकारी दें कि कल हम लोग एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखने वाले हैं, जहां हम एक दूसरे को जाने। अगर आप चाहें तो इस सेशन को नाम दे दीजिए। क्या होता है ना, कि जब हम किसी चीज को नाम देते हैं तो एक बहुत ऑफिशियल सा हो जाता है ना, एट द सेम टाइम पीपल फील कि हाँ भाई कोई इवेंट है, कुछ कुछ चीज होने वाली है। बस इंट्रोडक्टरी सेशन न देते हुए, चलो एक दूसरे को जाने, या चलो बातें करें, या यू नो लेट्स चॅट और समथिंग, व्हॉट एव्हर कम्स टू युअर माइंड, चला गप्पा मारूया, असा काहीतरी जेव्हा तुम्ही त्याला एक विषय देता आणि त्यांना सांगा की काय अपेक्षित आहे त्यांच्याकडनं, तयारी असू द्या त्यांची की त्यांना बोलायचं आहे या विषयावर। काय होतं, वेन वी जस्ट आस्क देम ना, दे सम पीपल स्पीक, सम माइट नॉट। फॉर्मॅट द्या ना त्यांना, काही हरकत नाहीये, सांगा, पूर्ण लिहून द्या वाटल्यास तर, की माय नेम इज डॅश, I did my 10th from dash school with dash percentage. I did my 12th from dash college dash school with dash percentage. पर्सेंटेज नसेल सांगायचं तर तसंही लिहा की तुम्हाला पर्सेंटेज नसेल सांगायचं, फक्त फर्स्ट क्लास किंवा सेकंड क्लास म्हणायचं असेल तर तसं पण म्हणा। नंतर त्यांना काय आवडतं, मग तुम्ही सांगा की मला सिंगिंग आवडतं, डान्सिंग आवडतं एक्सेट्रा। नंतर माझा फेवरेट हिरो कोण आहे, हिरोईन कोण आहे, किंवा एखादा अशी ऍक्टिव्हिटी घ्या ज्याच्यानी तुम्हाला मुलाबद्दल थोडी अजून माहिती मिळेल। अजून माहिती म्हणजे जसं की तुम्ही त्याला म्हणा की इफ यू वर टू कंपेअर युअर सेल्फ टू अ हिरो और अ हिरोइन ऑफ बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कोणतं पण, कौन सा रहेगा और क्यों रहेगा, एक कोई तो भी कॉमन तुम एक्टिविटी स्किल बताओ, तो थोड़ा सा और उनको मजा आएगा। और जब आप ये फॉर्मेट डालेंगे ना, तो खुद का वीडियो भी सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे कि आपने ये अपने बारे में ऑलरेडी बताया है। जब हम पहला कदम लेते हैं, उनके लिए दूसरा कदम लेना इजी हो जाता है। वरना वो जो हिचकिचाहट रहती है ना, पहले आप वाला, वो प्रॉब्लम ही मिट जाता है। पहले तो आपने एज ए टीचर, एज ए मेंटर, यू हैव टेकन दैट फर्स्ट स्टेप। आपको हाथ आगे बढ़ाना है, फॉर्मेट देना है और प्रोसेस को शुरू करना है, धक्का मारना है, पुश करना है। And then you diagnose what kind of problems do they have. Once you understand, हर एक बच्चा, 20 बच्चे होंगे तो 20 बच्चों के 20 डॉक्यूमेंट्स बनाइएगा। 20 बच्चों के अलग अलग गूगल या एक ही गूगल डॉक बनाइए जिसमें आप सेग्रीगेट कर लीजिए हर एक बच्चे का पेज।
और प्लान कीजिएगा कि हर एक बच्चे के साथ आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है। क्लब नहीं कर सकते हैं। मेंटरिंग इज एन एक्टिविटी जहां पे आपको इंडिविजुअल अटेंशन देना रहेगा। जैसे हमारी 5 उंगलियां सेम नहीं होती है, वैसे हर एक बच्चा सेम नहीं होता है। एक आधा बच्चा रहेगा जो बहुत ही ज्यादा हाई फाई रहेगा, कोई और बच्चा रहेगा जो बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाएगा। So accordingly, let them be. Review and then the process still continues. That is how you have to go ahead with the process. Okay. अब जब मैं बात कर रही हूँ about this, what is going on? I'm so sorry. Where are we exactly going with this? Okay, what are we going to talk about? What is the person going to do? So we talk to them. Sorry, I just skipped my slide. So what progress have they made is the next thing. First, we have to ask them what's going on in their life, right? What do they want to change and what are they prepared to do? Understand them. Maybe जैसे इन्होंने कहा कि उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, मोबाइल फोन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है। जो नहीं है पहले पता कर लीजिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ के साथ, गोल्स। क्योंकि आज के बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये पाई गई है कि गोल्स उनके क्लियर नहीं है। करेक्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू विथ लाइफ। और जैसे मैडम ने कहा कि हम तो साइंस फैकल्टी है, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्यों कोर्स चूज किया किसी बच्चे ने, what was the reason behind choosing a particular course, right? So where are they now? अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, कौन से सेमेस्टर में है, क्या अच्छा चल रहा है उनके लिए, क्या चेंज करना चाहते हैं, एंड व्हाट आर दे प्रिपेयर्ड टू डू। ये कुछ क्वेश्चंस आप शुरुआत में उनसे बात कर सकते हैं so that they know the answers to this. Then how will they get there? What progress have they already made? What knowledge, skills and resources do they possess? And what ideas and options are there? आप ही पूछिए उन्हें, ask them, talk to them, push them to a limit wherein they will answer their own questions. You know, I still do it. My mentor still does it for me. Asks me questions. क्यों करना है, ऐसे क्या होगा, ऐसा करने से फिर आगे क्या होगा, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, आपके जो दिमाग में ब्लॉक्स होते हैं ना वो खुलते जाते हैं, एंड यू गेट अ फ्लो टू योर थॉट्स। Asks, आज के डेट में स्टूडेंट्स डू नॉट राइट एनीथिंग. If you can provoke them, urge them, make them write something, maybe a journal, maybe a diary, maybe a WhatsApp chat group, anything will do. But make them go on the path. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करेंगे कैसे? तो व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है, फेसबुक रूम्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एन ऑनलाइन वर्चुअल। अब गूगल हो गया या ये हो गया, इसके अलावा अगर कुछ ट्राई करना है हमें तो हम फेसबुक चैट रूम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से कोई पैडलेट यूज करता है? Anyone who uses Padlet? Nobody? Yes, Manjusha ji says yes that she uses a Padlet. तो आप ना, अब जो लोग नहीं जानते हैं, they can simply Google what a Padlet. It's very easy to make. कुछ नहीं है, एक सिंपल पेज ओपन अप होगा आपके सामने, एक वॉल जैसा, आणि आपण एखादा नोटीस बोर्ड कसा असतो ना, जहां पे हम जो मन चाहे वहां पे वो पोस्ट कर सकते हैं, बस पैडलेट मान लीजिए आपका वो नोटिस बोर्ड है। और मान लीजिए कि वो आप उसको एक नाम दे दीजिए, मेंटर मेंटी का जो भी आपका ग्रुप होगा, और वहां पे उन बच्चों को ऐड कर लीजिएगा और बच्चों को बोलिए जो भी उनके मन में है, क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है, कोई किसी चीज के बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन जाननी है, किसी ने जानी है, शेयर करनी है, सब कुछ वो उस नोटिस बोर्ड पे डालते जाए। लेट इट बी देयर, लेट इट बी अ ओपन सोर्स फॉर देम टू पुट आउट देयर व्यूज। हो सकता है
कि इस तरीके से उन्हें कुछ नया करने का मौका मिले। यहाँ पे आप YouTube के वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इमेजेस शेयर कर सकते हैं, आप क्विज शेयर कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, आप आपके कमेंट्स डाल सकते हैं, कुड बी एनीथिंग। डू इट, मजा आएगा, बच्चों को भी मजा आता है। पहले पहले थोड़ी दिक्कत जाती है उनको कि यूज कैसे करना है, साइन इन करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए। तो अगर आपके बच्चे टेक सेवी हों, जैसे MBA के बच्चे हो गए या थोड़े से 3rd ईयर के बच्चे हो गए, वो ये कर पाएंगे। उनके लिए ये ज्यादा इजी रहेगा टू डेवलप दिस बॉन्ड बियॉन्ड द क्लासरूम। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो मैं आपको बोल रही थी ना, आप क्या क्या शुरू कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट विजन बोर्ड्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयरिंग पर्सनल एंड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल गोल्स, कि उनको क्या गोल्स सेट करने हैं उनके लिए। This is a great way to kick off the new year and get to know your mentee better. And because we are in the first month of 2022, आप जरूर ये आपके बच्चों के साथ ट्राई कीजिए, विजन बोर्ड्स क्रिएट करना। आप चाहें तो इसको एक गूगल डॉक बना लीजिए, उसको नाम दे दीजिए विजन बोर्ड का, और बच्चों को बोलिए कि बस दे हैव टू सिंपली कीप ऑन गिव द एडिट एक्सेस टू एवरीवन। आपके बच्चों को एडिट एक्सेस दे दीजिए उसका, और लेट एवरीवन, पूरी बच्चों की लिस्ट की नाम की लिस्ट आप उसमें पेस्ट कर दीजिए, और हर एक बच्चे को बोलिए अपने नाम के सामने उसको एक पर्सनल एकेडमिक गोल और एक प्रोफेशनल गोल उसको डालना है। अब पर्सनल गोल में वो हो सकता है उसकी कोई बुरी आदत हो, जरूरी नहीं कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग ही, इट कुड बी डिजिटल एडिक्शन एज वेल, या हो सकता है किसी को नाखून चबाने की आदत होती है, किसी को स्टटरिंग है, स्टैमरिंग है, किसी को वेट लॉस करना है, कोई भी गोल हो सकता है इंसान का, वो गोल वो शेयर करे। और उसके साथ साथ एक एकेडमिक, जैसे कि आपको किसी बच्चे को ये सिखाना है, यू वांट टू मेक हिम लर्न अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर कराना है, तो वो आप बोलिए कि आप इसमें आपके प्रोफेशनल या एकेडमिक गोल में आप लिख सकते हैं। दूसरी एक्टिविटीज जो आप आपके मेंटीज के साथ कर सकते हैं वो ही हैविंग अ बुक क्लब। स्टूडेंट्स डू नॉट रीड एट ऑल, एंड जबकि किंडल आ गया है तब तो बुक्स की तो वैल्यू ही नहीं रही है। वैल्यू क्रिएट करने के लिए आप एक बुक क्लब शुरू कीजिए, मेक देम रीड, मेक देम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। आप कोई भी एक बुक चूज कीजिए, हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोणत्याही भाषेतलं असो, त्या बुकचे काही चॅप्टर्स वाचल्यास तुम्ही चूज करू शकता आणि त्याच्यावर डिस्कशन घेऊ शकता। हे नसेल करायचं, आणि पुष्कळदा आर्ट्स वाले स्टुडंट्स करूनही घेतील आहेत, पण मे बी सायन्स वाले स्टुडंट्स मे नॉट फाइंड इट वेरी कंफर्टिंग। वेब सीरीज आजकल बहुत चलन में है। द मोमेंट यू टॉक अबाउट वेब सीरीज और उसके एग्जाम्पल्स इन क्लासेस, आप देखना आपके बच्चों के चेहरे चमक उठते हैं। आप ये काली काली आंखें बोलिए, नेटफ्लिक्स पे किसने देखा, आधे से ज्यादा बच्चों के हाथ खड़े हो जाएंगे। सो हैव यू वॉच्ड, लेट मी आस्क यू, हैव यू वॉच्ड ये काली काली आंखें व्हिच इज गोइंग ऑन नेटफ्लिक्स? फिर देखा है, मूवी नहीं देखी है। मूवी नहीं, वेब सीरीज चल रहा है Netflix पे। मैम टीजर देखा है बस। हाँ, तो जब हम बच्चों के साथ कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, जो चीजें इन चल रही हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई नया सीरीज आया है या प्राइम वीडियो पे आया है, समथिंग जो चर्चित है बहुत ज्यादा, हमें उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम यू कैन टॉक अबाउट द वेब सीरीज, you can talk about the learnings from these web series. So you can also have एक दिन, जैसे मैंने पूछा ना कि कितने बार आप मिलते हैं, मैं सजेस्ट करूंगी वीक में एक बार तो आपने उनके साथ मिलना ही मिलना है। इट कुड बी ईदर द स्टार्टिंग ऑफ अ वीक और एंड ऑफ द वीक। If it is end of the week, if being a Saturday, you can talk about say local food, you can talk about local cultures, you can have a ऑनलाइन पॉटलक प्रोग्राम, ऑनलाइन पॉटलक, चाय पे चर्चा। आप सब बोलिए शाम की चाय हम एक साथ पियेंगे, ऑनलाइन पियेंगे सब लोग। एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, बी हैव एन इनफॉर्मल सेटिंग जहां पे आप सब एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे अबाउट व्हाट दे हैव डन थ्रू आउट द वीक। And weekly meetings to talk about weekly activities are extremely important
for developing a good mentor and mentee relationship. Okay. Moving ahead, जब मैंने NAC में इतना बोल रही थी आपको कब से कि activities, we talk about record, we will be talking about career options to them, we will be talking about developing relationship. जब हम ये activities की बात कर रहे हैं, इसका record हमें कैसे रखना है? ये तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ आगे की स्लाइड्स में। जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ और करियर ऑप्शंस, दिस कम इन क्राइटेरिया 5, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हम बात करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो कल्चरल कमिटी होती है, जैसे आई गेस प्रचिति मैडम इज इन चार्ज फॉर दिस इन एलईडी कॉलेज, इज इट मैम? Yes, madam. Yes. Yes, and let me tell you that Prachiti madam is doing a wonderful job. She's very quick to respond to whatever we share with her. तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमको रिकॉर्ड भी रखना है, तो मेंटर के पास ही अपने आप रिकॉर्ड आ जाता है बच्चे का। उसने कहीं पे भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, तुरंत बच्चा आपको बताता है कि मैम हिस्लप कॉलेज में एक पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन था, वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया है। द मोमेंट ही सेज दिस, आप बोलते हो गुड, यू नीड माय हेल्प, आप उसको हेल्प कीजिए अगर चाहिए तो। जैसे ही हो जाता है, आप उसका सर्टिफिकेट वो आपको दे देगा, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा आपके पास। आप तुरंत क्राइटेरिया 5 में ये लगता है एक्स्ट्रा करिकुलर में, ये उनको दे देंगे। बच्चे ने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तुरंत मेंटर रिकॉर्ड लेता है, अगेन गोज टू क्राइटेरिया 5। करियर ऑप्शंस जो है उसके अगेन क्राइटेरिया 5 में है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, प्लेसमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड, एवरीथिंग कैन गो व्हेन इट इज रिकॉर्डेड। क्योंकि मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ इतना कि मेंटरिंग क्यों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे आता है कॉलेजेस में, राइट? 10% ऑफ द स्टूडेंट्स रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको एक क्वेश्चनर भरवाया जाता है, जिसके बेसिस पे आगे का हमारा एसएसआर प्रोसीड होता है। जब मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, वो मेंटी मेंटर के कहने पे कॉलेज में कभी भी आ जाते हैं, काम करते हैं। वो मेंटर के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग उनका हो जाता है बिकॉज दे नो दैट दे गिव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। Give constructive feedback to your mentees. Tell them what is going wrong. If they're doing something bad or wrong, tell them, but not in a negative way. जब हम यूजीसी स्ट्राइड का, मैंने अभी मैडम ने बताया मेरे इंट्रोडक्शन में कि आई एम पार्ट ऑफ यूजीसी स्ट्राइड ग्रुप 3, वहां पे हमारा एकेडमिक राइटिंग का वर्कशॉप हुआ। सो जो हमारी रिसोर्स पर्सन थी, शी वाज फ्रॉम यूएसए, डॉक्टर लक्ष्मी अय्यर, वंडरफुल लेडी। एंड आई टेल यू, उन्होंने हम सबको जॉब ये दिया था, टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए। हम सबको ये बताया था कि एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना था। उन्होंने पहले हमको सिखाया एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड शी टोल्ड अस टू राइट इट। सो मेरा टर्न आया एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस विथ हर। The kind of language she was using when explaining things, she did not use the word like this is wrong, this is ये तुमने क्या कर दिया, ये गलत है, हे असं असायलाच नको होतं, ये बिल्कुल उन्होंने बोला नहीं। And what she said was, Muktai, I believe, and because she was talking in her, accent, I'm trying to imitate her, and she was telling me like, you've done a wonderful job here with your abstract, and I feel this would be more interesting. Can we add a few words which are related to your project in this, Muktai? And I was like, yeah, ma'am, why not? I was not offended, क्योंकि वो मुझे पूछ रही थी क्या हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, क्या ऐसा करने से तुम्हारा प्रोजेक्ट और अच्छा नहीं बनेगा? So she was directly giving me a constructive feedback when she was talking to me. So whenever we have this kind of rapport with our students through daily messages, we can promote internships, we can talk to them about certifications, we can talk to them about extracurricular activities, और ये इसका मिला जुला असर जो होता है ना, वो eventually student satisfaction survey में जाता है।
हमारी सबकी जॉब सेफ है, हमको जॉब से कोई निकालने नहीं वाला है, बट हमारे कॉलेज का नाम होना चाहिए, स्टूडेंट्स ने बोलना चाहिए कि भाई तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए बिकॉज यहाँ के फैकल्टीज आर फैंटास्टिक, because they should say that the mentoring process here is wonderful, I gained a lot, आज मैं जो हूं वो इनकी वजह से हूं, जब ये बोलेंगे तब आपका mentoring process सुपर हिट है, तब आप बोलोगे कि this is fantastic. And coming to counseling skills for teachers, I believe we have another 15-20 minutes. Preeti ma'am? Yes, madam. Yeah, so I'll quickly, don't worry, I won't bore you. I'll talk about counseling skills for teachers. अब आप सबका ये सवाल रहेगा कि मैडम काउंसलिंग तो काउंसलर्स करते हैं, हम तो सर्टिफाइड भी नहीं है। मैंने किया है एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, सो आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर, मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ, पर हमने तो किया नहीं है, तो शुडंट वी लीव काउंसलिंग टू काउंसलर्स? यहाँ पे मेरा ये कहना ये है आप लोगों से that yes, in a sense what you are saying is not wrong, but जो कॉलेज की फैकल्टी होती है, स्टाफ होता है, बाकी का जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो पहली चीज होते हैं जो बच्चे जिनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग नहीं होती है, या दे फील दे आर अनप्रिपेयर्ड टू हैंडल दीज इश्यूज व्हिच कैन लीड टू अवॉइडिंग देम ऑल टुगेदर। हम बच्चों से बोलते हैं अरे नहीं नहीं बेटा मुझे नहीं पता, ये मेरे पर्व्यू में नहीं है, बेटा तू मुझे पढ़ाई का कुछ भी पूछ ले। या वैशाली मैम सेज अ गुड टीचर इज अ गुड काउंसलर, एब्सोल्युटली ट्रू। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट काउंसलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप उनको बेसिक तो सपोर्ट दे ही सकते हो ना, आप उनको बेसिक चीजें बताइए which are needed for responding to say students psychological, emotional or developmental issues, to learn to identify students in need of additional academic और personal counseling। आप academic support तो दे ही सकते हो बच्चे को, ऑब्वियसली हम 30 मिनट्स में तो बहुत अच्छे काउंसलर्स नहीं बना सकते हैं, बट एटलीस्ट ये आने वाले में 10-15 मिनट में कोशिश करूंगी कि क्या क्या स्किल्स हम अपने में ले सकते हैं so that we can become better counselors than we are today. Okay, so let us move on. So even though the teacher is not the school or the college official counselor, often he or she is the first person to listen to students' problems, respond and suggest ways of intervention and resolution. बच्चा आपके पास आता है saying that मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, या फिर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज, या फिर मेरे पास बुक्स नहीं है, कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो बच्चे आपके साथ शेयर कर सकते हैं। At this point of time, first thing that you can do is listen, and listen attentively, listen as if it means the world to you. Okay, just a moment. Extremely sorry for that disturbance. So what I was trying to say is you listen to the person as if he's meaning the world to you. Listen attentively and then respond. Maybe you don't have the answer to their solution, but you can at least give a good ear and say, okay, we'll try. Let us think over it and find ways to solve that particular problem. So जैसा I think sir ने महेश sir थे शायद जिन्होंने कहा that respect is something that should come. So in counseling skills, other than the communication skill, which is very important, respect and trust. When we respect another person, respect his problem. बहुत मिनी सिक्योर प्रॉब्लम हो सकती है, अरे एक तो सी टुच्ची सी बात तो मुझे बताने के लिए आ गया, भाई उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है।
respect his problem and gain trust. See, होता है काफी बार जब हम स्टाफ रूम में बैठते हैं तो हम बच्चों के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, one thing that a teacher who is a counselor should remember is confidentiality. Never talk about the problems of the student who has confided in you with another teacher unless it is absolutely necessary. It's not a gossip that you are doing in the staff room. It's a problem, a genuine problem a student has shared with you because he trusts you completely. Because he knows that you are not going to spill this information to somebody else. And if you break that trust, if you do not respect this, the person will never come to you. So being confidential is something which you have to have if you are counseling. And then non-judgmental. बच्चा अगर आपको ये भी आके बताए कि मैडम आई एम अडिक्टेड टू अल्कोहल, डोंट से कि व्हाट यू हैव डन और तूने ये क्या कर दिया, बहुत घोर पाप हो गया तेरे से, एंड दिस एंड दैट. बी नॉन जजमेंटल. A counselor is non-judgmental. A person has come to you because he or she is having a problem. Your job as a counselor is to be helping that individual by not being judgmental, by not being saying कि भाई तूने ऐसा ही क्यों किया और वैसा ही क्यों किया. Be non-judgmental, be open, and with that open mind, you will be able to help that individual. Okay, so these are some red flags which I'll quickly go through. कि कब हमको stop करना है counseling, या कब ये काउंसलिंग मेरे हाथ के बाहर जा रहा है. जब बच्चा आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, बहुत नीडी बन जाता है, क्लिंगी बन जाता है, आप उसका फोन ना उठाओ, रिस्पॉन्ड ना करो तो बहुत ज्यादा हाइपर होने लगता है, इट्स अ रेड फ्लैग. रिमेंबर दिस. You have to have a boundary set between the student and that counselor. Excessive disclosure भी नहीं करना है. Unreasonable request नहीं उनके मानने हैं. Excessive number of meetings भी नहीं करने हैं. And you know, every now and then the same student is showing up for counseling. This also should not be acceptable. अगर आपको लगता है कि बच्चे के सुसाइडल थॉट्स है, मूड शिफ्ट्स हो रहे हैं, वो खुद को सेल्फ हार्म पे जा रहा है, पुअर पर्सनल हाइजीन है, तुरंत आप किसी घर के बड़े बुजुर्ग या किसी उसको पहले कॉन्फिडेंस में लेके आप बताएं, ताकि आगे चल के सुसाइडल टेंडेंसीज या आपके लिए, आपके कॉलेज के लिए प्रॉब्लम्स ना हो. तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके कॉलेज में काउंसलिंग सेल आपको शुरू करना है तो आप उसको, एंड इफ यू आर नॉट अ सर्टिफाइड काउंसलर, अगर आपका एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं हुआ है या आपने काउंसलिंग में डिग्री डिप्लोमा नहीं लिया है, तो आप उस सेंटर को करियर काउंसलिंग सेंटर इस नाम से शुरू कीजिएगा, और उसमें मैं बताती हूँ क्या क्या चीजें आप ले सकते हैं. ओके, जैसे मैंने बताया, लीव असेसमेंट टू द क्लिनिशियंस, वो आपको नहीं करना है. रिकॉर्ड्स रखने हैं हर एक चीज के, एंड यू हैव टू लर्न योर रोल एज एन इंस्ट्रक्टर, गाइडेंस और अ कोच. तो जैसे कि मैंने बताया, आपको करियर काउंसलिंग सेंटर आप आराम से शुरू कर सकते हो कॉलेज में. As a teacher, you are there on LinkedIn, on any professional platform. आप बच्चों के लिए क्या अवेलेबल करियर ऑप्शंस हैं, इसकी अपडेटेड जानकारी आपके पास होनी चाहिए. उस सेंटर में आप ये चीजें आपके नोटिस बोर्ड पे लगाएं, उसको अपडेट कीजिएगा. शेयर इंफॉर्मेशन की अवेलेबल सर्टिफिकेशंस क्या है वो आप बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा. स्वॉट एनालिसिस के टेम्पलेट्स में चाहूंगी आप सब लोग अपने अपने कॉलेजेस में बना लें, अगर नहीं बनाए हो तो. है आपके कॉलेजेस में स्वॉट एनालिसिस के टेम्पलेट्स आपके बच्चों के लिए? डू यू हैव दोज? उमेश जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं है मैडम.
नहीं है. Okay, okay. So प्रचिति मैम, I would suggest and उमेश जी that please आप लोग आपके बच्चों के लिए SWOT analysis के templates बना लीजिए. ये mentoring में भी काम में आते हैं और career counseling center में तो पक्के में काम में आएंगे. उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं. और जो भी मीटिंग्स आप लेते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट काउंसलिंग, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं, स्किल्स क्या लर्न की है, आप इसका एक लेखा जोखा रख सकते हैं. ओके, दिस आई विल स्किप बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. अब मैं चाहूंगी कि आप नेम रखिए, आपके सेंटर का कोई ना कोई नाम जरूर रखिएगा. उसके टाइमिंग्स डिफाइन कर दीजिए कि सुबह से 11 से 12 के बीच में, या आपके क्लासेस जब खत्म होते हैं उसके 1 घंटे बाद आप ये काउंसलिंग सेंटर शुरू रखेंगे. रूल्स सबको बता दीजिए, सभी बच्चों को रिकॉर्ड रखिए. एंट्री गेट पे एक रजिस्टर रखिए. एक अच्छी सी रूम जहाँ पे बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह हो. एक टेबल एंड चेयर जहाँ पे आप शांति से कंफर्टेबली बैठ के बच्चों के साथ बात कर पाए. 1 स्टूडेंट एट अ टाइम. रिमेंबर दिस. मेंटरिंग और काउंसलिंग का फर्क ये है, मेंटरिंग आप चाहे तो आपके पूरे मेंटर ग्रुप के साथ बात कर सकते हो. काउंसलिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी है. यहाँ पे आप एक बच्चा एट अ टाइम ओनली. ओके, give remarks and get signature from the students. That's what you can always do, because we cannot teach people anything. We can only help them discover it within themselves. That's what Galileo says. So that's what is from my side. Let me quickly share the format I wanted to with you all, so that my job would be done over here. Just give me a moment. Is the screen visible to you all? यस मैम. Yes, yes. Yeah. So this is what you can do. आप सीधा सीधा अपने कॉलेज का नाम, लोगो वगैरह डाल दीजिएगा. मेंटरिंग एक्टिविटीज का ईयर, नेम ऑफ द मेंटर, एक्टिविटी नेम. अब एक्टिविटी मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज अभी बताई कि आप क्या क्या कर सकते हैं. बुक रिव्यू है, या अगर आपने किसी इसके बारे में बात की हो, क्या बोलेंगे हम, स्वॉट एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल्स. स्टूडेंट्स के नाम लीजिए, सिग्नेचर लीजिए, आपका रिमार्क डालिए. कोर्स कोऑर्डिनेटर जो होगा आपका, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनकी साइन, IQAC कोऑर्डिनेटर की साइन और प्रिंसिपल की साइन. ओके, दिस कैन बी अपलोडेड एज अ मेंटरिंग शीट इन योर AQAR. आजकल तो अभी AQAR ईयरली हो गया है ना. तो पहले कैसा होता था, हम AQAR में इंफॉर्मेशन भरते थे और SSR में पूरे शीट्स चढ़ाते थे. अभी तो ये साल से ऐसा नहीं है. ये साल से AQAR में ही अपने को सब शीट्स चढ़ाने हैं. तो आप ऐसे शीट्स आपके कॉलेज के लिए बना ले सकते हैं. अब आप बोलेंगे आप ये हम सिग्नेचर कैसे लें, तो चाहो तो जब बच्चा एडमिशन फॉर्म के लिए आए, एग्जाम फॉर्म के लिए, तब लो, या फिर गूगल फॉर्म्स द बेस्ट, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली डेट और टाइम आ जाता है जब बच्चे ने फॉर्म भरा हो, तो वो भी चलता है. देन क्या क्या ले सकते हैं आप एक्टिविटीज? सेल्फ अवेयरनेस, स्वॉट एनालिसिस का टेम्पलेट्स बना लीजिए. जोहारी विंडो एक वेबसाइट है, Keyban.org नाम की. यहाँ पे बनी बनी जोहारी विंडो की आपको एक्टिविटी मिल जाएगी. जनरल वीकनेसेस बच्चों के क्या होते हैं, तो ये होते हैं सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सबमिसिवनेस, अग्रेसिवनेस, स्टेज फियर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और कम्युनिकेशन स्किल. इनके ऊपर तो आपको मेंटरिंग में एक्टिविटी लेनी ही लेनी है. तो हर वीक में एक टॉपिक पकड़िए और ये टॉपिक के ऊपर एक्टिविटी लीजिए. बच्चों के सिग्नेचर लीजिए, बच्चों के रिमार्क्स लीजिए. अगर मान लीजिए वीक 1 में, फेब्रुवरी वीक 1 में आपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात करना शुरू किया, तो वीक में मतलब 7 दिन आपको रोज एक वीडियो अपलोड करना है, एक कोट अपलोड करना है, और आपको बज क्रिएट करना है आपके ग्रुप में. वो बज मरने नहीं देना है, बच्चों से बात करते रहनी है. सेल्फ रेगुलेशंस के बारे में भी आप बच्चों से बात कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल फास्टिंग हो गया, अफर्मेशन हो गया. मेंटरिंग फॉर न्यूली इंडक्टेड टीचर्स जो मैंने बताया आपको, आप उनको लेसन प्लान कैसे बनाना, सब्जेक्ट नॉलेज का अपडेशन, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना, नए पेडागोजिकल टूल्स, आप उनको अच्छा मेंटर कैसे बनना, ये भी सिखा सकते हैं. और यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान हमें रखना है कि आपको उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है. अपनी टीचिंग स्टाइल उन पे इम्पोज नहीं करनी है, ना उनकी हर आइडिया को नीचे गिराना है.
help them in implementing new ideas, encourage value addition, और चाहे तो आप इसके ऊपर एक FDP भी बना सकते हैं या 30 घंटे का एक कोर्स डेवलप कर लीजिए न्यूली इंडक्टेड फैकल्टीज के लिए, जो अगेन आपके NAAC में काम में आएगा. It would be a new thing for your college to do as a mentor to new teachers. आपकी भी खुद की डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, और आपके कॉलेज के बाकी फैकल्टीज की भी यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी. अब जब मैं काउंसलिंग सेल की बात कर रही हूँ, आप करियर काउंसलिंग सेल नाम दे सकते हैं. उसके अंतर्गत आप एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग लीजिए, स्टूडेंट्स को बताइए कि हाँ कॉलेज एक काउंसलिंग सेंटर रन करता है, टाइमिंग्स बताइए. कोई भी चीज प्रॉमिस मत कीजिए कभी भी बच्चे को काउंसलिंग में, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल काउंसलर्स, तो डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग. एंट्री रजिस्टर रखना है और रिकॉर्ड रखना है. रिकॉर्ड कैसे रखना है मैं फॉर्मेट दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे. नेम ऑफ द स्टूडेंट, कोर्स एंड सेमेस्टर, उसका एज, जेंडर, एरिया ऑफ रेसिडेंस, माता पिता का नाम और ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर लिख लीजिए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, ईमेल आईडी, बच्चा किस प्रॉब्लम की वजह से आपके पास आया हुआ है वो लिखिए. आपने क्या इशू आइडेंटिफाई किया, क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किया, बच्चे की सिग्नेचर लीजिए. नेक्स्ट मीटिंग आपने का शेड्यूल किए वो लिखिए और नीचे आपकी सिग्नेचर डाल दीजिए. और इसके नीचे प्रिंसिपल की सिग्नेचर ले लीजिए. एक बच्चे का एक फॉर्म बनेगा. बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes. This is Yes, madam. how you can Yes. make the format. आप चाहे तो इसको कैसे भी अपने हिसाब से कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए. And I think we are good to go. Can you share? Yeah, I'll share this document with you all. I'll share it with Preeti ma'am. Preeti ma'am then can share this with you all. Yes. Absolutely no issues. Yeah. So I'm going to stop share my screen. Any questions, anyone now? I'm Wonderful sorry I session, ma'am. exceeded my time. Ma'am, you can on your video now. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Participants कोणाला काही विचारायचं आहे? हाँ, please. तुम्ही विचारू शकता. Feedback regarding the lecture. Yeah. Any Anyone. question? हेलो. हाँ मैडम, उमेश उदापुरे. एक हाँ. बात पूछना था. जी बोलिए. जहाँ पे सोशल साइंस के कॉलेजेस है जी. वहाँ पे एखादी जो डिपार्टमेंट है वो छोटा है और दूसरा बहुत यानी बड़ा है. तो ऐसे समय में मेंटरिंग के लिए स्टूडेंट कोणते चूज करना चाहिए? जैसे एक कॉलेज में जहाँ पे BA है, BCom है, लॉ भी है, तो ऐसे इसमें हम हमारे ही बच्चे को मेंटरिंग के लिए लेते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाइड रहते हैं और वो सब बातें बताने के लिए हिचकिचाते हैं. तो ऐसे समय में आपका सजेशन क्या रहेगा? देखिए मैंने जैसे कहा ना आपको कि जब हमारा बच्चा हिचकिचा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वो कनेक्ट नहीं कर पाया है हमसे, तो वो थोड़ा सा आप उमेश जी देखिए कि क्या इश्यू आ रहा है कि बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. अगर वो इस वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि आप इंफॉर्मेशन दूसरी फैकल्टी को बताएंगे या इंटरनल मार्क्स कम करेंगे, तो ऐसा आप उन्हें पहले ही अश्योरेंस दे दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा. और एक्टिविटी से कोशिश की क्या उमेश जी आपने? क्या आपने उनके साथ कोई एक्टिविटी करी है? मैडम जी की है एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज की. कौन से टाइप के कुछ बताएंगे थोड़ा सा मुझे? उनको जो समझो मैं लीगल फील्ड से हूँ, ओके तो मोटिवेशन एक्टिविटी आई हैड परफॉर्म विद देम. और और यहाँ तक कि उनका एक बार हमने ये भी लिया था कि प्रेजेंटेशन कि आप सब लोग कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं. हाँ और नहीं, ये ना सब एकेडमिक एक्टिविटीज हो गए, एक्टिविटीज जहाँ पे वो अपने साथ थोड़ा सा ओपन अप हो, आइस ब्रेकर्स जिसको हम लोग बोलते हैं. yes, actually it was a field based activity. We had taken the legal camp. In that they had interacted very much with all the faculty of law. Okay. और इसमें हमने ये जाना कि हम जब यानी इस प्रकार की एक्टिविटीज लेते हैं तो वो बच्चे बहुत पास में आते हैं और हमको उनको समझने का मौका मिलता है. करेक्ट.
करेक्ट। तो जब ये ऐसी जब एक्टिविटीज होती है ना, तभी बच्चे खुलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। सो इफ एट ऑल यू फील कि बच्चे नहीं ओपन अप हो रहे हैं ना, तो एक आधा आइस ब्रेकर एक्टिविटी ले डालिए बीच में। ये करंट बैच में आपको लग रहा है क्या कि बच्चे घुल मिल नहीं रहे हैं? हाँ मैडम, ये इसी बैच में लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि शायद यानी एक ही फील्ड के होने के कारण शायद वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था आपसे कि क्या जब सोशल साइंस का कॉलेज है तो हमें अदर स्ट्रीम के बच्चों को लेना चाहिए एज अ मेंटर या मेंटी करके, या हमने हमारे ही बच्चों को लेना चाहिए? दैट वाज द माय जनरली क्वेश्चन। जनरली आपने अपने ही बच्चों को लेना चाहिए। इसकी दो वजह है। एक, वो बच्चा आपके साथ कांस्टेंट टच में रहता है, और दूसरा, आप उसको प्रोफेशनली बेटर गाइड कर पाएंगे। मान जी, राइट। लीजिए अगर मुझे कोई केमिस्ट्री के बारे में कोई प्रोफेशनल एडवाइस पूछेगा, मैं क्या उसको तुरंत जवाब दे पाऊंगी? नहीं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं मेरी स्ट्रीम के बच्चों को गाइड करूं। ओके मैडम, राइट राइट। थैंक यू सो मच। Yeah. Anyone else? Any questions regarding counseling or Hello, ma'am. जी? Hello, ma'am. Ma'am, my question is, in that pandemic situation or in a lockdown, we have taken online activities. Okay. Right. So, to make a documentation for that, I have a query. Like we had taken online activities. So, can we take signatures afterwards when the students come in the colleges for scholarship form submission or any other activities? Yes, Is it they okay? can. Yes, you can. But Vaishali ma'am, let me ask you, what kind of activity did you conduct? Activity like you told, the communication skill. Ma'am, I am belongs to the rural area. My college is in the rural area. The number of students have their they feel backward while talking in English or exposed to in front of everybody. So we are taking such a type of online activities in the pandemic so that they are exposed or they can feel free to talk in front of everybody. So if we are taken any activity like such activity also or other activities also, if we are taken, we can take the signatures or whatever for the documentation afterwards. They if they come in the colleges. हाँ, That is my ले question. सकते हैं. And my question is only for the documentation. How we Yes. can create that I'm coming to documentation? that. I'm coming to that. फीडबैक फॉर्म नहीं बनाया वैशाली मैम इवेंट का? Like Google Form etc. हाँ. No, ma'am. हाँ, तो क्या करना वैशाली मैम, आता कसं होतं ना, जब भी बच्चा कॉलेज आता है, हो सकता है अपन फॉर्म देना भूल जाए या क्लर्क उसकी साइन लेना भूल जाए। जब इवेंट होता है तभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फीडबैक फॉर्म दोनों चीजें बना के रखना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, उसमें तो टाइम स्टैम्प आता है गूगल का, तो वी कैन नॉट मैनिपुलेट दैट एंड नैक ऑल्सो नोज दिस। सिमिलरली फीडबैक फॉर्म जो है, इसके डुअल पर्पसेस है। एक तो रिकॉर्ड कीपिंग में, और फीडबैक फॉर्म अगेन पूछा जाता है क्राइटेरिया 2 में, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म ऑफ इवेंट्स। तब भी आप ये फीडबैक फॉर्म दे सकते हो, एंड इन दिस रिकॉर्ड कीपिंग मेंटरिंग वो भी आपके काम में आएगा। गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए वैशाली मैम हर बार फॉर फीडबैक्स। ओके मैम। तो कैसा होता है, एक मैं बताती हूँ फाइल कैसे बनाने का आपको। एक गूगल डॉक बनाने का, उसमें फ्लायर चिपकाना, ठीक है? फ्लायर आप लोग पावर पॉइंट में बनाइए, मैं बताती हूँ सबसे इजी है, ज्यादा दिमागी नहीं Yes, लगाने का ma'am. किसी Every चीज को। time we have done this, that flyer making, that registration, and that feedback, or Put for it in one certification Google folder. courses also for certificates is attached with the feedbacks. Every time we have do this, but for mentor and mentee, the small group is there, like 10 students to me. So I'm not doing that activity of feedback or registration in the mentor and mentee group only. Do it. It will be good for you also. अपने पास एक रिटन रिकॉर्ड बन जाता है अपना। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, बिल्कुल बनाइए। लगे तो उनको पूछिए what did you like the most about the session, any suggestions about the sessions that they have, ask them what are मैम their ये जो expectations. डॉक्यूमेंट आपने जो शेयर किया अभी वो हमको आप शेयर कर दीजिए प्लीज।
हाँ हाँ हाँ, मैं प्रीति मैम के साथ शेयर कर देती हूँ. She'll share it with everybody else. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Any more question? Very nice session, madam. Hello, ma'am. जी. Yes. I would like to thank you, Priti ma'am, for organize this energetic lecture. And don't mind, ma'am, आपकी स्माइल से ही बहुत अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पता चलता है. So thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for being a wonderful audience. That gives me good so energy to see you all tomorrow as well. यस मैम, थैंक यू सो मच. कल भी मिलेंगे मैडम सेम टाइम पे. Yeah. कल लेट नहीं होगा मैम. आज एक्चुअली इनके सेमिनार्स थे, वो थोड़ा ज़्यादा देर तक चले, इसलिए थोड़ा आज 15 मिनट्स डिले हो गया था. Not an कल issue. 2:30 Not an we issue. will I understand. sharply start. Okay. All right. Everyone, take care. Stay safe. Bye bye. Thank you so much, ma'am. Good day, ma'am. Oh, thank you so much. Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे रुकते हैं आज. आपने मूडल साइट देख ली आज की? No, Yes, ma'am. ma'am. ज्यांनी नसेल बघितलं त्यांच्यासाठी सांगते, आज 2 असाइनमेंट्स आहेत आणि एक रिपोर्ट सबमिशन आहे. 2 नवीन सॉफ्टवेअर्स दिले आहेत मी. ते असाइनमेंट बघा. तुमच्याकडनं जर इझिली जमत असेल तर परफॉर्म करा. म्हणून मी तिथे काही डेडलाईन नाही ठेवलेली आहे सबमिशनची. आज जे 2 सॉफ्टवेअर सांगितले हे स्क्रीन कास्टोमॅटिक आणि यूट्यूब कॅम. त्याचे असाइनमेंट्स तुम्हाला जमले तर आज सबमिट करा किंवा उद्यापर्यंत केलं तरी चालतील. कधी कधी लॅपटॉप टू लॅपटॉप गोष्टी थोड्याशा चेंज होतात, तर सेव्ह करण्यामध्ये थोडा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. जमेल तर ते असाइनमेंट सबमिट करा. ते कंपल्सरी नाही आहेत. फक्त रिपोर्ट सबमिशन कंपल्सरी आहे. ठीक आहे. हो. मॅडम या सेशनचा रिपोर्ट ना? हा, हे सेशन आणि पहिलं रोझिना राणा मॅडमने जे घेतलं होतं. हा. ठीक ओके आहे. या ओके 2 सेशनचे फक्त रिपोर्ट लिहायचं आहे, जे मी दिलेलं आहे साईटवरती. ओके मॅडम थँक्यू. रोझिना मॅमचं मी लेक्चर पण अपलोड केलं आहे आत्ताच. या मॅडमचं आता हे संपलं की अपलोड करते. Hello, ma'am.